السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں اتوار کی رات اور مئی کی 17 تاریخ، جبکہ پاکستان میں پیر کی صبح اور مئی کی 18 تاریخ ہے۔ ناظرین، بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپیندرا دویویدی نے ایک عجیب سا بیان دیا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں، جو کہ اچھا خاصا سوشل میڈیا پر وائرل ہے، کہا کہ پاکستان نے اگر دہشت گردی کی پشت پناہی بند نہ کی تو پھر پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے یا جغرافیے کا۔ یعنی بنیادی طور پر وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ بہت بڑی وارننگ ہے، بہت سیریس وارننگ ہے، اور ایک ایسے وقت آ رہی ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں نہ صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ سرموری ہے بلکہ کشیدگی ہے۔ یہ بیان انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کا جو ٹریبیونل ہے دی ہاگ میں، اس نے پاکستان کے حق میں وہ فیصلہ دیا جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تھا۔ یہ اس کے تقریباً ایک دن بعد آیا۔ بھارت نے اس کو، یعنی جو دی ہیگ کا جو یہ ایک فیصلہ آیا اس کی عدالت کا، اس کو مسترد کیا اور کہا کہ ہم اس عدالت کو مانتے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فوج کے سربراہ کا یہ بیان یقیناً کسی شرنگیزی سے کم نہیں ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو گزشتہ سال مئی ہی کے مہینے میں جو جنگ ہوئی تھی، اور محدود جنگ تھی، بلکہ آپ ان کو جھڑپیں کہہ سکتے ہیں، جس میں کہ بھارت نے اپنے کئی طیارے گنوائے۔ آج تک اس کی گنتی جاری ہے۔ بھارت میں اگر آپ کہیں 8 طیارے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں جی، 8 نہیں ہیں، آپ نے ہمارے کوئی طیارے گرائے نہیں، جبکہ امریکی صدر مسلسل، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ، ایک سے کئی مرتبہ، یعنی دسیوں مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے کم از کم، بات 6 سے شروع ہوئی تھی اور شاید اس وقت 8 یا 9 کی بات چل رہی ہے کہ اتنے طیارے گرائے۔ پاکستان کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے کم از کم 6 طیارے بھارت کے گرائے، جن میں ان کے رافیل طیارے بھی شامل ہیں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ وہ زخم ہے جو کہ بھارت کی فوج کو آج بھی تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے۔ اور شاید اسی لیے جنرل دویویدی کا جو یہ بیان ہے، یہ اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ ایک ایسے وقت جب دنیا ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے، جب معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بھارت کے اندر ایک تحریک شروع ہو چکی ہے، اس کا بھی میں ابھی ذکر کروں گا، جو بہت پازیٹیو سائن ہے۔ لیکن پاکستان کا بھارتی فوج کے سربراہ کے اس بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت، عالمی اہمیت کا حامل ملک اور جنوبی ایشیا کی جغرافیائی اور تاریخی حقیقت کا انمٹ حصہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جغرافیہ سے مٹانے کی کوئی بھی دھمکی باہمی اور تباہ کن نتائج کی حامل ہوگی، یعنی میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا پاکستان وعدہ کر رہا ہے اس بیان میں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ گمراہ کن بیان اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ بھارت 80 برس بعد بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے ناکام رہا ہے یا ابھی تک نہیں کر پا رہا، اور ایسی جنگی زبان اور جذباتی نعروں سے صرف اسٹریٹجک دیوالیہ پن ہی ظاہر ہوتا ہے۔ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے، ہر مضبوط، خود مختار اور ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پاکستان کا پیغام ہے، دو ٹوک پیغام ہے، اور بھارت کو یاد دلایا گیا ہے کہ یہ جو ان کے آرمی چیف جو بیان دے رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر ایک اور ایٹمی طاقت کے حوالے سے دے رہے ہیں، جس نے کہ گزشتہ سال، یعنی ابھی یہ 12 مہینے ہی ہوئے ہیں کہ بھارت کو ناکوں کے چنے چبوائے تھے۔ یہ بات الگ ہے، میں جنگوں کے حق میں نہیں ہوں، میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ ہم اس بات پر بحث کریں کہ جنگ کس نے جیتی، کیونکہ جنگ کسی کے حق میں بھی اچھی نہیں ہے۔ لیکن میں اس بات پر کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب بھی میں پانی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، دوستی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، جنگ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، پاکستانی جو میرے ناظرین ہیں ان کی جانب سے جنرلی، یعنی اس میں ایکسیپشنز ہوتی ہے لیکن جنرلی کافی پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بالکل امن ہونا چاہیے، جنگوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بھارت کے جو ہمارے ناظرین ہیں، میرے جو دوست وہاں سے پروگرام دیکھتے ہیں، اور میں ان کا بہت شکر گزار بھی ہوں، ان میں سے سارے تو نہیں لیکن چند بہت زیادہ زہر فشانی کرتے ہیں، یعنی ان کی زبان سے صرف اور صرف آگ برستی ہے، غصہ برستا ہے، نفرت برستی ہے۔ اور یہی وہ نفرت ہے جس کا مقابلہ ہم جیسے لوگوں کو جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ہمارے جیسے دوست جو بھارت میں بیٹھے ہیں انہوں نے کرنا ہے، اور شاید وہ اب کر بھی رہے ہیں، کیونکہ آج ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ، جو کہ ہانگ کانگ کا ایک بہت بڑا انگریزی اخبار ہے، بہت پرانا انگریزی اخبار ہے، 1903 میں شروع ہوا تھا، وہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ خبر شائع ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں اب جو بھارتی نیشنلسٹ ہیں وہ بھی حکومت سے کہہ رہے ہیں، اور بلکہ وہ اس بات کے حق میں ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہونی چاہیے، یعنی اگر سرکاری سطح پر بات چیت نہیں ہو رہی تو غیر سرکاری سطح پر بات چیت کا عمل ہونا چاہیے۔ بہت اچھی خبر ہے، بہت حوصلہ افزا خبر ہے۔ اس خبر میں آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل دتاتریہ
हुसबाले को कोट किया गया है और कहा गया है कि उनके हवाले से बयान सामने आया है कि भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ एक बातचीत की खिड़की खोले या दरवाजा खोले, और ये कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ जरूर होनी चाहिए। न सिर्फ ये बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत भी बहाल होनी चाहिए। वीजा का जो मसला दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत पुराना चला आ रहा है, उसको भी हल होना चाहिए। ये जो बयान आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल का आया, तो इसकी तायद भारतीय फौज के साबिक सरबरा जनरल मनोज नरवाने ने भी की। उन्होंने इसको इंडोर्स किया और कहा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत जरूरी है, और चाहिए कि हम सिविलियन जनरली जो है वो सियासत से यानी दूर रहते हैं, लिहाजा बेहतर यह है कि वो अगर आपस में ताल्लुकात बेहतर करें तो शायद पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी पर भी उसका, या जो सियासी सतह पर जो एक बहुत चपकलिश की कैफियत कैफियत है, उसमें कुछ कमी आए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कम अज कम चार ट्रैक टू डिप्लोमेसी के राउंड्स हुए हैं, यानी गैर सरकारी सतह पर राब्ते हुए कम अज कम 4 मरतबा। मुझे मालूम है, मैं इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी का खुद हिस्सा रहा हूँ 90 की दिहाई में। जब हम पाकिस्तान इंडिया फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी का मैं खुद हिस्सा था, एडमिरल रामदास उस दौर में उसके सरबराह थे। हमने उस दौर में पेशावर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। मकसद सिर्फ और सिर्फ अमन था, जंग नहीं, अमन। और उसमें हमारे यहाँ कोई 300 से जायद मेहमान भारत से तशरीफ लाए थे, और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। तो एक बहुत हौसला अफजा खबर है, जहां भारत के जो फौज के सरबराह हैं वो जहर फशानी कर रहे हैं, तो वहीं भारत ही की सिविल सोसाइटी और फौज के साबिक सरबराह इस बात के हक में है कि दोनों मुल्कों के दरमियान राब्तों में इजाफा होना चाहिए। इन खबरों की पाकिस्तान के वजारत खारजा ने तायद भी की और इसको वेलकम भी किया, और कहा कि उम्मीद है कि अकल और दानिश का मुजाहरा किया जाएगा और बातचीत को दोबारा एक चांस दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। अगर भारत मुसलसल पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो इससे ज़ाहिर है चपकलिश पड़ेगी, यहाँ पर जंग का खतरा है। इस वक्त भी कहा जा रहा है कि जंग का खतरा तो है, क्योंकि जो जुबान भारतीय फौज के सरबराह ने इस्तेमाल की है, अगर यही जुबान पाकिस्तान फौज के सरबराह इस्तेमाल करते तो वहां पर तो आग लग जाती कि जनाब देखें, पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर जंगी कार्रवाई करने वाला है। हालांकि पहले भी भारत ने हमला किया था, मुंह की खाई थी। उससे पहले भी जो बालाकोट पे हमला किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, मुंह की खाई थी। एक उनका पायलट पकड़ा गया जिसको पाकिस्तान ने भारत के हवाले किया। तो इतनी बार बार नाकामियों के बाद भी अगर पाकिस्तान को दांत दिखाकर यह समझा जा रहा है कि पाकिस्तान इससे डर जाएगा, तो मेरा ख्याल है बड़ी ही ज्यादा खुशफहमी है, और इससे किसी को कुछ फायदा नहीं है। मी बीइंग यानी मैं जाती तौर पर जंगों का शदीद मुखालिफ हूँ। मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात के हक में हूँ। मेरी राय में पाकिस्तान और भारत को मिलकर क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना चाहिए। पानी को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि दोनों मुल्कों की जरूरियात पूरी हो, और अच्छे दोस्तों की तरह रहने की जरूरत है, और इसी के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं उसके हक में हूँ। लेकिन जो भारत में इस वक्त जो जत्था हुकूमत में है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं बेसिकली, वो जो कुछ चाहते हैं, यकीनन उसका जवाब अगर उनको चाहिए होगा तो जिस तरह गुज़श्ता साल मई के महीने में उनको मिला था, एक मरतबा फिर भी मिलेगा। हाल दिनों में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक और अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो आईसीसी के चेयरमैन हैं जय शाह, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो इस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं मोहसिन नकवी, उनको इंडियन प्रीमियर लीग का जो फाइनल है उसमें अहमदाबाद लाने आने की दावत भी दी। और अगर मोहसिन नकवी ये दावत कबूल करते हुए जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा वाकया होगा। अब थोड़ा जिक्र जो मशरक़ वस्ता में हालात हैं उसका थोड़ा जिक्र करते हैं, क्योंकि खलीज में बहुत ज्यादा कशीदगी में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ट्रंप की जानिब से दो किस्म के पैगाम आता है। एक, आज उन्होंने शाम को एक अपना जो उनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, वहां पर एक उन्होंने इमेज, एक तस्वीर जो है वो पोस्ट की, जो बुनियादी तौर पर पूरे के पूरे खलीज और साउथ एशिया को अमरीकी झंडे में लिपटा कर पेश कर रहे हैं। और फिर इस तरीके से शक्ल दिखाई गई है कि गोया ये तमाम एरिया ईरान के खिलाफ है, यानी उनके ऊपर हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस किस्म का पैगाम है। मैं इसको लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए कि वो जो रेड एरोज हैं वो ईरान की तरफ हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप खुद ही अखज़ कर लीजिए, लेकिन यकीनन ये अमन का पैगाम शायद नहीं दे रहा। ट्रंप ने आज एक और भी वार्निंग दी, और उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक और बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के पास वक्त खत्म हो रहा है, और ये कि
जल्द अज जल्द वो वाशिंगटन के साथ एक मुआहदा करे, डील करे, वरना फिर इनके पास कुछ नहीं रहेगा। ये भी उनका एक बहुत ज्यादा सीरियस वार्निंग है, जिसकी एप्लीकेशन यकीनन बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप का ये बयान एक ऐसे वक्त आ रहा है कि जब सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने आज ऐलान किया कि उन्होंने आज ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। एक हमला कामयाब हुआ, अबू धाबी के करीब जो मुत्तहदा अरब अमारात का एक एटमी प्लांट है, उस पर हमला हुआ। वहां पर उनका एक जनरेटर था, उस पर वहां पर आग लग गई क्योंकि वो ड्रोन वहां गिरा। जो उनका जो मेन प्लांट था वो महफूज रहा, कोई ताबकारी वगैरह वहां से उसका अखराज नहीं हुआ। लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात ईरान पर इल्जाम लगा रहा है, और इसी तरह सऊदी अरब ने भी कहा है कि उसने कम से कम एक ड्रोन मार गिराया है। अब ये ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं? यकीनन इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं रही, सीधा ईरान पर इल्जाम लगा रहे हैं। शायद ईरान कर भी रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसे वक्त जब ईरान की भी ये ख्वाहिश है कि कोई मसले का हल निकले, सियासी हल निकले, और साथ वो नई जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप भी ये चाहते हैं कि कोई पुरअमन हल निकले, लेकिन वो अपनी टर्म्स पर एक एग्रीमेंट चाहते हैं, और साथ ही वो नई जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। आज अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि यानी ट्यूसडे के दिन, हमारे वक्त के मुताबिक परसों, आपके वक्त के मुताबिक कल, वो जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ मुलाकात करेंगे, और ईरान के हवाले से जो उनके पास नई ऑप्शंस हैं उन पर बात होगी। क्या जंग दोबारा शुरू होने वाली है? मुझे लगता है कि शायद शुरू हो सकती है। इस इम्कान को हम बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अपनी जो साल्फी की कोशिशें वो जारी रखी हुई हैं। मोहसिन नकवी जो है वो इस वक्त ईरान में हैं। उन्होंने आज यानी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ कोई 1.5 घंटा मुलाकात की, और ख्याल यह है कि यही जो अमेरिका ईरान तनाज़ा है, इसके हवाले से बातचीत हुई। क्या इसका कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा? फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि कम अज कम पाकिस्तान की जानिब से साल्फी की कोशिशें जारी हैं। और अहम चीज़ ये है कि ये इस जंग में जो इस वक्त एक तातुल सामने आया हुआ है, उसकी वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, क्योंकि आपने हुर्मुज़ बंद है, ईरान ने भी बंद की हुई है, अमेरिका ने भी बंद की हुई है। अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों की बेसिकली नाकाबंदी की हुई है, लेकिन उससे जाहिर है कि ओशन ट्रैफिक काफ़ी मुतासर हो रही है, और जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं, कोई $109 फी बैरल तक तो पहुंच चुकी हैं। अमेरिका के अंदर खुद जो पेट्रोल की कीमत है वो कोई $4.5 से बढ़कर अब नेशनल एवरेज यही आ गई है, $4.51 पर गैलन। अमेरिका के अंदर भी इसके ऊपर यकीनन एक महंगाई का एक तूफान आया हुआ है। दुनिया भर में महंगाई का तूफान आया हुआ है। इंटरनेशनल इकॉनमी इससे मुतासर हो रही है, स्पेशली गरीब ममालिक बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। अब देखते ही हैं कि कौन सबसे पहले आंखें झपकता है, कौन सबसे पहले गिव इन करता है, या कौन सबसे पहले इसके लिए तैयार होता है कि हम बड़ी कंसेशन देने के लिए तैयार हैं। ये ईरान होगा या अमेरिका होगा, या दोनों मिल बैठकर इसका कोई हल निकालेंगे? उम्मीद ये करते हैं कि ये दोनों मिल बैठकर इसका कोई हल निकालेंगे। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की जानिब, लेकिन आखिरी खबर की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मेरी कोशिश होती है मैं जवाब दूं, और इंशाल्लाह जवाब देता रहूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि चैनल की रीच बढ़े। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की जानिब, और वो आज अमरीकी वेबसाइट ड्रॉप साइट पर छपी है। इंतहाई सनसनीखेज खबर है, जिसको लिखा है रायन ग्रेम, जो एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, मुर्तज़ा हुसैन एक और अमरीकी सहाफ़ी हैं, और वकास अहमद, इन्होंने इसको लिखा है। बहुत तफसीली खबर है, बहुत ज़्यादा सनसनीखेज इंकशाफात से भरपूर खबर है। आई विश कि आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत का कोई रिएक्शन नहीं आया, एंड आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर पाकिस्तान की जानिब से इस पर कोई रिएक्शन ना आया, और अगर ना आया तो फिर समझ लीजिए कि यकीनन अब ये इंकशाफात है क्या। सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर जो वो साइफर जो कि इमरान खान साबिक वजीर आजम ने एक जलसे में लहराया था और बताया था कि ये वो साइफर है जो कि अमेरिका ने भेजा, जिसके जरिए उनकी हुकूमत को गिराया गया। पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस थी, कोई कहता था ये झूठ बोल रहे हैं, कोई कह रहा था, यानी हर किस्म की बातें थी। हुकूमत की जानिब से जो बयानिया चल रहा था वो कहते हैं इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद बावजूद इसके कि जब ये साइफर आया तो उस वक्त के फौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा के आशीत बार से अमेरिका को एक डिमाश भी दिया गया, यानी उससे एक प्रोटेस्ट भी किया गया। लेकिन फिर उसके बाद वही जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो किरदार अदा किया, शायद पाकिस्तान की हालिया तारीख में सियासी जर्नैलों का जो किरदार रहा है हमेशा बदतरीन किरदार रहा है। मेरा ख्याल है कि ये एक और बदनुमा धब्बा है। ये खबर जब आप पढ़ें तो उसमें आपको जनरल बाजवा का वो मकरूह किरदार नजर आएगा जो कि उन्होंने इस साइफर के बाद अदा किया। वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आई विश कि हमारी हुकूमत और रियासत मिलकर इस रिपोर्ट का जवाब दें, और इसको एविडेंस के साथ रिजेक्ट करें, या फिर इस वेबसाइट को अदालत में ले जाएं। अगर क्योंकि इसमें जो
जिस किस्म के दावे किए गए हैं, बहुत ज्यादा स्वीपिंग हैं, बहुत बड़े दावे हैं। और यकीनन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका आज भी ये यकीन रखता है कि इसमें एक एक लफ्ज दुरुस्त है, लेकिन यकीनन हुकूमत के हामी इससे इख्तिलाफ रखते हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अब सच को सामने आना चाहिए। क्या कभी आएगा? मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी आएगा, लेकिन चलते हैं इस खबर की जानिब। इसमें कहा गया है कि जो शहबाज शरीफ हैं, ये कह रहे हैं कि जी हम ट्रंप के बहुत करीब पहुंच गए हैं। फिर उसमें पूरी कहानी लिखी गई है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ और फौज के मौजूदा सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने पर्सनल राब्ते बढ़ाए, किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा किरदार हासिल किया कि वो एक मीडिएशन के किरदार में आ गए। फिर इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि वो मीडिएशन का किरदार जो है वो बुनियादी तौर पर कोलैप्स कर गया। फिर इस खबर में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने पाकिस्तान के किरदार को रिजेक्ट किया, और इसमें कहा गया कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक्समैन हैं इब्राहिम रजाई, उनका नाम लेकर कहा गया है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो क्रेडिबल सालिस नहीं है। ये ईरान के एक स्पोक्समैन को कोट करके इसमें लिखा गया है। और कहते हैं क्योंकि जब भी पाकिस्तानी हमसे बात करते हैं तो अमरीकी एंगल ज्यादा पेश करते हैं, ये भी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसी तरह जो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस रिपोर्ट का है, वो आईएसपीआर पर बहुत ज्यादा यानी इल्जाम लगाया गया है। वो कहते हैं कि डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जो आईएसपीआर है, उसने जो मुख्तलिफ जो प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो रिपोर्टर्स में तकसीम किए गवर्नमेंट सोर्सेज की बुनियाद बनाकर, ताकि पाकिस्तान की जो ग्लोबल मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाया जा सके, और पाकिस्तान की जो सियासी और सिफारती ताकत है उसको दुनिया में प्रोजेक्ट किया जाए। ये भी इसके अंदर एक दावा किया गया है। इसी तरह साबिक वजीर आजम इमरान खान का जो वो है, यानी उनकी जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात की तारीख है, उसका भी इसमें जिक्र है कि जून 2021 में जब उस वक्त के सीआईए के सरबराह विलियम जे बर्न्स ने उस वक्त इमरान खान से दरखास्त की कि आप हमें एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए ड्रोन्स के लिए बेसिस दें, तो इमरान खान ने इसको बिल्कुल यानी इनकार कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते। फिर जो साइफर है उसके बारे में भी जिक्र है कि किस तरीके से ये आया, और फिर उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया। वो साइफर मैंने भी पढ़ा है, जो कम अज़ कम ड्रॉप साइट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर भी अब हर जगह अवेलेबल है, जहाँ पर के जो डोनाल्ड लू हैं, उनको कोट करके पाकिस्तान के सफीर कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा अगर पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल हो जाए और इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हुकूमत से निकाल दिया जाए। अब नो कॉन्फिडेंस के आर्किटेक्ट कौन थे? जनरल कमर जावेद बाजवा थे। ये जनरल बाजवा ही थे जिन पर आज भी ये इल्जाम है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में इन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया, क्योंकि इमरान खान खुद एक नहीं कई मरतबा, दसियों मरतबा ये कह चुके हैं कि बाजवा ही मेन आर्किटेक्ट था उनकी हुकूमत को गिराने के लिए। यहाँ पर फिर यह भी जिक्र है कि जो इमरान खान की हुकूमत को हटाकर पाकिस्तान की फौज ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए क्या किया, और आईएमएफ का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए यूक्रेन पर असलहा बेचा। ये असलहा के बेचने की खबर भी बेसिकली जो ड्रॉप साइट है इसी ने ब्रेक की थी। फिर कहते हैं कि जब इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया तो अक्टूबर 2022 में बाजवा वाशिंगटन डीसी आए, और यहाँ पर आकर इस खबर में बहुत खौफनाक यानी मेरा ख्याल है दावा किया गया है। वो कहते हैं कि इस विजिट के दौरान बाजवा ने बाइडेन के टॉप ऑफिसर से मुलाकात की, जिनमें उस वक्त के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर जेक सलिवन थे। उनके साथ मुलाकातें की, और इन मुलाकातों में उन्होंने अमेरिका को एश्योरेंस क्या दी। उन्होंने कहा कि हम अपने मिसाइल्स की रेंज को कम कर देंगे ताकि ये इसराइल तक ना पहुंच सके। ये ड्रॉप साइट का दावा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि हम आपको और भी फेवर देने को तैयार हैं, यानी बाजवा अमरीकियों को मजीद फेवर देने के लिए तैयार थे, और उन्होंने कहा कि हम अपनी मिलिट्री और हमारी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको भी कम कर देंगे, उसको भी महदूद कर देंगे, और चीन के असर को भी कम कर देंगे। ये भी बाजवा ने अमरीकियों से बेसिकली पेशकश की थी उनको। और फिर जब जनरल बाजवा वापस आए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? कहते हैं कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के जो हेड थे उनको बुलाया और उनको कहा कि आपने अमरीकी एक वफद को हमारी जो सेंसिटिव न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनका विजिट कराना है। और कहते हैं कि जो एसपीडी की जो टॉप कमांड थी और जो आर्मी की उस वक्त की हायरार्की में जो जर्नल थे, उन्होंने रेजिस्ट किया, और बाजवा इसमें कामयाब ना हो सके। अमरीकी यूं वहां तक यानी उनको पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर तंसीबात हैं उन तक रसाई ना मिल पाई। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से फिर जब बाजवा रिटायर हुए या रिटायर होने पर मजबूर किए गए और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौर शुरू हुआ, तो यहाँ पर भी एक मरतबा फिर यही इल्जाम लगाया गया है इस खबर में कि आसिम मुनीर
اور ان کی جتنے بھی ساتھی ہیں، انہوں نے مل کر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی، جس کے ذریعے ایک بہت بڑا کام کیا گیا۔ یعنی یہ تو کہا گیا کہ نیوکلیر کمانڈ کا ایک نیا سربراہ قائم کیا جائے گا، لیکن وہ سربراہ آج تک قائم نہیں ہوا۔ لہٰذا جو نیوکلیر کمانڈ ہے وہ اس وقت ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا نام فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے۔ یہ اس خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب باجوہ اس بات میں ناکام ہو گئے، یعنی امریکیوں کو وہ پاکستان کی نیوکلیر تنصیبات تک رسائی دینے میں ناکام ہوئے، تو اس کے بعد پھر بائیڈن کو وہ بیان سامنے آیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ڈینجرس ملک ہے، کیونکہ اس کے جو نیوکلیر کمانڈ ہے اس میں کوئی کوہیشن نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ایک اور جو اہم نقطہ، کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر طاقت میں آئے، اور اس وقت ان کا پاکستان کی حکومت پر بہت بنیادی اثر ہے، بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی حکومت چلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں پاکستان کی اور چائنا کا جو پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے، یا سی پیک ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کام مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے جب چین سے کہا کہ آپ ہمیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹیز دیں، اور ہم آپ کو گوادر ایز اے ملٹری بیس دینے کے لیے تیار ہیں، تو چین نے اس سے انکار کر دیا۔ اب سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے کیا؟ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی یہ ہے کہ اگر نیوکلیئر جنگ ہوتی ہے، یا ایٹمی جنگ ہوتی ہے، اور خدا نہ کرے کہ جنگ ہو، لیکن اگر ایسی ہوتی ہے اور پاکستان پر ایٹم بم بھارت گراتا ہے، تو پاکستان کے پاس اس کا جواب دینے کی اہلیت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے وہ ڈیلیوری سسٹمز ہونے چاہیے جو کہ ایٹمی حملے کی صورت میں بھی جواب دینے کی پاکستان کو اہلیت دیں، یا پاکستان کے پاس سے قابلیت ہو۔ ایک اور جو اہم نقطہ اس میں اٹھایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جو کرپٹو کرنسی جس طریقے سے پاکستان نے آفر کیا، صدر ٹرمپ کی فیملی سے ایفیلیٹڈ کمپنیز کے ساتھ انہوں نے کاروبار کیا، پھر ان کو یہ ایک باور کرایا کہ آپ کو ہم جو پاکستان میں $36 ارب ہر سال ترسیلات کی صورت میں اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، تو اس کو بھی اسی روٹ کے ذریعے ہم آپ کو یہ آفر کریں گے کہ یہ پیسے اس طریقے سے، یعنی کرپٹو کے ذریعے، ان چینلز کے ذریعے پاکستان پہنچائے جائیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ارب کا کاروبار کرپٹو کی صورت میں صدر ٹرمپ اور ان کے قریب ترین ساتھیوں کو پیش کیا گیا۔ یہ بھی اس خبر میں دعویٰ ہے۔ اور بھی بہت سارے دعوے ہیں، بہت تفصیلی خبر ہے، یہ تو چند چیدہ چیدہ نکات تھے جن کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے اس پر کیا جواب آتا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔